चलिए डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट, अभी तक आपने देखा कि हम लोग अपने क्लास 9 कोर्स में जो मोशन की स्टडी कर रहे हैं, और आपके कोर्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मोशन है वो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन एंड इट्स टाइप्स। तो स्टूडेंट, आप जो स्टडी कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मोशन, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन मोशन बेसिकली दो टाइप के मोशन में क्लासिफाई किया गया है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करते हैं तो स्टूडेंट, आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे हम लोग अपने टाइम इंटरवल के अकॉर्डिंग कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना और कैसे ट्रेवल कर रहा है, यहाँ डिस्टेंस रिलेटेड बात करते हैं जब हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन को क्लासिफाई करते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म में। तो देखिए, यूनिफॉर्म मीन स्टूडेंट क्या होता है, जैसे देखिए आपने यहाँ देखा, ये आपकी कार ओ पॉइंट से स्टार्ट करती है और ये टोटल 16 मीटर की जर्नी ट्रेवल करती है। तो आपने देखा हमने अपने टोटल जर्नी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, और 4 पार्ट्स में इस तरह डिवाइड किया कि जो लगने वाला टाइम हो एक पार्ट में वो आपका 2 सेकेंड हो। मतलब आपने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया टाइम वाइज। 4 इक्वल पार्ट्स इन टाइम वाइज मीन एक पार्ट में लगने वाला टाइम आपका 2 सेकेंड है। तो आप फर्स्ट केस में देख रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन, जो आपका क्लासिफिकेशन है। इसमें आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट फर्स्ट 2 सेकेंड में 0 to 4 मीटर जा रहा है, नेक्स्ट 2 सेकेंड में 4 to 8 मीटर जा रहा है, एंड अनदर नेक्स्ट 2 सेकेंड में 8 मीटर to 12 मीटर जा रहा है, एंड देन अनदर नेक्स्ट 2 सेकेंड में 12 मीटर to 16 मीटर। तो स्टूडेंट, आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट हमने यहाँ 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आप देख रहे हैं किसी भी एक पार्ट में देख लें आप, तो इन 2 सेकेंड्स ऑब्जेक्ट इज टेकिंग और कवरिंग 4 मीटर डिस्टेंस, मीनिंग कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग equal distance. So this is called uniform motion. But student, now come to the next point. You can see that now we have started our motion from right side. So student, you can see that object has now in the same way object has traveled total of 16 meters. You can see there O to D 16 meter. Now students, now it is time to divide our journey in 4 equal parts time wise, not distance wise. So see, we have divided our journey in 4 equal parts time wise, meaning equal 2 seconds, means each journey is divided into journey of 2 seconds. तो देखिए, O to A time taken by object is 2 second, A to B is 2 second, B to C is 2 second, C to D is 2 seconds. So now student, then we are going to talk about distance या displacement. So now you can see that O to A object has traveled 2 meter distance in 2 seconds. And now in another part object has traveled A to B in 2 seconds, but distance traveled is 6 meter, and here distance traveled is 2 meter. So now you can notice that in non-uniform motion objects travels unequal distance in equal interval of time. So student, to classify our motion into uniform motion and non-uniform motion, we are going to divide our journey in equal interval of time, and then we are comparing both
how much distance object travels in equal interval of time. If in first diagram you can notice, if object is traveling equal distance in equal interval of time, it is called uniform motion. And here you can see object has traveled unequal distance in equal interval of time, means 2 second, 2 second, 2 second, 2 second, but distance traveled is unequal. So this is called non-uniform motion. So you can notice that while classifying straight line motion into uniform and non-uniform, we are taking equal time interval in both the cases and comparing the distance traveled in equal time interval for both the cases. So today in the last lecture I have told you that non-uniform motion is again classified into two types of motion. So students, last time I made you remember that uniform motion and uniformly accelerated motion are not the same, but uniformly accelerated motion and uniformly retarded motion are the classification of non-uniform motion, meaning we are classifying non-uniform motion into two types of motion, that are uniformly accelerated motion and uniformly retarded motion. So student, one difference you can notice that while classifying straight line motion into uniform and non-uniform, we are talking about distance traveled in equal time interval, or you can say that uniform motion has same speed in every interval, while non-uniform motion has different speed at different interval of time. Now students, we are going to classify non-uniform motion into two types of motion. That is, you can notice that, डियर स्टूडेंट्स, देखिए अब हम लोग क्लासिफाई करने जा रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन को. सो स्टूडेंट्स, now we are going to classify non-uniform motion, and at your level of class 9th, non-uniform motion is again classified into two types of motion, that is uniformly accelerated motion and uniformly retarded motion. So students, in this motion we are again going to classify our motion in equal interval of time, but now we are going to check how the velocity is changing. स्टूडेंट देखिए, इससे पहले आपने जब स्ट्रेट लाइन मोशन को यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपने क्लासिफाई किया था, तो इक्वल टाइम इंटरवल में आपने डिवाइड किया था दोनों मोशन को, और वहाँ पे आपने चेक किया था कि मोशन डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वो कैसे ट्रेवल कर रहा है. लेकिन अब यहाँ पे आप स्टूडेंट बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो दो टाइप के मोशन आप क्लासिफाई कर रहे हैं, इसमें यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन एंड यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन. तो आप जो इसका फर्स्ट टाइप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसमें हमने अपने मोशन को डिवाइड तो किया है टू इक्वल टाइम इंटरवल्स में, लेकिन हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं हाउ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, नॉट डिस्टेंस. सो स्टूडेंट, नाउ यू कैन लिसन दैट, यू कैन सी दैट देयर यूनिफॉर्मली एक्साइटेड मोशन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट. देखिए, तो देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases, meaning changes with time,
at constant rate, then the motion is said to be uniformly accelerated. This means कि हम अपने ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसको ईच एंड एवरी सेकेंड टाइम बाद नोट करेंगे। फिर हम उसका नोट करेंगे कि ईच एंड एवरी टाइम सेकेंड के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है। अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज हो रही होगी इक्वल अमाउंट में, या आप कह सकते हैं कांस्टेंट रेट से विथ टाइम, मतलब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पर सेकेंड इक्वल अमाउंट में चेंज हो रही होगी तो हम उसको बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो आपका फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन है वो भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। तो सुनिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक टाइप का क्लासिफिकेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और आपको पता है यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात करेंगे और मोशन को इक्वल टाइम इंटरवल पे डिवाइड करेंगे, या आप ये कह सकते हैं हम मोशन को हर एक सेकेंड बाद नोटिस करेंगे। और अगर आप देखते हैं हर सेकेंड बाद अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से इंक्रीज होती है तो वो आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। या आप ये कह सकते हैं अदर टर्म्स में वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज विद टाइम एट कांस्टेंट रेट। एट कांस्टेंट रेट मीनिंग पर सेकेंड ऑफ टाइम, मीन्स वेलोसिटी at constant rate means velocity increases per second, means you are going to compare rate of change of velocity per second, and if it comes constant then it is said to be uniformly accelerated motion। तो आप हिंदी में एक बार इसको फिर से समझ सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, कांस्टेंट रेट मीनिंग होता है पर सेकेंड में जो चेंज आ रहा है वो सेम होना चाहिए, और यहाँ हम वेलोसिटी चेंज की बात कर रहे हैं। और टाइम के साथ, अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज होने का रेट कांस्टेंट है तो इसका मीनिंग स्टूडेंट ये है कि वेलोसिटी जो ईच एंड एवरी सेकेंड चेंज हो रही है वो सेम होनी चाहिए। तो स्टूडेंट देखिए, अब वेलोसिटी चेंज दो कंडीशन में हो सकती है, या तो वेलोसिटी बढ़ रही होगी या तो वेलोसिटी कम हो रही होगी। तो जब हम लोग यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की बात करेंगे तो यहाँ हम वेलोसिटी इंक्रीज होने की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट केस में, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है। अब आप इसको किसी स्लोप से बॉल को रिलीज कर देते हैं तो बॉल आप देखेंगे आफ्टर 1 सेकेंड उसकी वेलोसिटी आप समझिए यहाँ पे उसकी 2 मीटर पर सेकेंड है। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे देखिए 4 मीटर पर सेकेंड है, एंड अनदर पॉइंट पे देखिए 6 मीटर पर सेकेंड है। फिर देखिए यहाँ पे 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ अब यहाँ पे देखिए 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट आप इस ग्राफ के साथ अगर इसको नोटिस करते हैं, देखिए, तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जी स्टूडेंट, देखिए अब आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं, आपने देखिए 0 सेकेंड पे जब आपकी डिस्टेंस आपने मेजर करना चालू किया था 0 मीटर, वेलोसिटी थी आपकी 0 मीटर, और यहाँ पे एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब अब जो अनदर सेकेंड में जो वेलोसिटी चेंज होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड से चेंज होगी। इसलिए आपको याद है कि एक्सेलरेशन का मीनिंग आपको हमने बताया था चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं यहाँ एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको फिक्स दी गई है, मतलब जो एक्सेलरेशन में जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो 2 मीटर पर सेकेंड, या आप कह सकते हैं 2 मीटर हर सेकेंड में इंक्रीज हो जाएगी। तो देखिए, जब तो आप 0 से 1 जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 1 मीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड।
और ऑब्जेक्ट का जो चेंज है वो क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, केवल हम लोग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल होने में 1 सेकेंड लिया और उसकी वेलोसिटी हो गई 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ आने में जो ऑब्जेक्ट ने जो टाइम लिया 1 सेकेंड, लेकिन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई 4 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट ने टाइम लिया 1 सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी हो गई 6 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं हर सेकेंड में डिस्टेंस तो अलग अलग, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब स्पीड बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ पे चेंज ऑफ स्पीड जो है वो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स, आपका हर बार सेम आना चाहिए। चेंज ऑफ स्पीड मीनिंग देखिए पहले आपकी स्पीड 0 थी, बाद में 2 हो गई, तो अब देख पा रहे हैं यहाँ 0 से 1 के बीच में चेंज इन वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड आया। अब अगर आप देखें 1 और 2 सेकेंड के बीच में चेंज इन वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट, 4 माइनस 2, तो 2। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं हर बार जो आपकी वेलोसिटी का चेंज हो रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड का है। देखिए यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ी, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ी, यहाँ से यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड, यहाँ से यहाँ 2 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख पा रहे हैं हर टाइम इंटरवल में यहाँ पे क्या है, चेंज इन वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन बोलते हैं वो 2 मीटर पर सेकेंड एवरी टाइम या एवरी सेकेंड है। और आप देख पा रहे हैं हर अनदर सेकेंड बाद 0 to 1 बाद वेलोसिटी आपकी बाय 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ जा रही है। तो आप देख पाए स्टूडेंट इस वाले मोशन में आपकी जो वेलोसिटी है वो हर बार 2 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाती है, या हर टाइम इंटरवल बाद वेलोसिटी सेम अमाउंट से बढ़ जाती है। तो ये आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है जो आपकी डेफिनेशन है। अब स्टूडेंट हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, यह आपका है यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। अब स्टूडेंट देखिए आपको बताया था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी बढ़ती है और यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में वेलोसिटी हर बार डिक्रीज होती है। और स्टूडेंट देखिए वेलोसिटी अगर आप देखें अब यहाँ पे डिक्रीज होने का जो लाइव एग्जांपल है वो ये है कि अगर आप डाउन द स्लोप से अप द स्लोप अगर वेलोसिटी या किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो उसकी वेलोसिटी पहले से कम होती जाती है। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं जो हमने पहले बॉल को थ्रो किया यहाँ पे, तो आपके बॉल की वेलोसिटी ऊपर की तरफ है -10 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट माइनस क्यों लिया है, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। बट आप स्टूडेंट देख रहे हैं यहाँ पे नंबर जो है वेलोसिटी का वो ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन लेफ्टवर्ड है लेकिन वो 10 मीटर पर सेकेंड है। अब आप देख पा रहे हैं आफ्टर 1 सेकेंड यहाँ पे वेलोसिटी क्या है 2 मीटर पर सेकेंड से कम हो गई, या आप कह सकते हैं देखिए डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे 6 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड हो गई, यहाँ 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है इसमें क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद यूनिफॉर्म रेट या कांस्टेंट रेट। मोशन इज सेड टू बी यूनिफॉर्मली डिक्सलरेटेड मोशन। तो स्टूडेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक बार फिर से देखिए, आपने इस टोटल जर्नी को इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड किया है 0 to 1। देख पा रहे हैं आप यहाँ से यहाँ तक बॉल ने 1 सेकेंड लिया है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड लिया है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड, और यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड। तो स्टूडेंट ये जो आपका जो ये वाइट एरो है किसी पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी शो कर रहा है, और ये जो एरो है आपका एक्सेलरेशन की वैल्यू शो कर रहा है। और स्टूडेंट आपको बताया था कि जब एक्सेलरेशन की वैल्यू
अपोजिट होगी, मतलब कि अगर वेलोसिटी आपकी माइनस है तो एक्सेलरेशन प्लस होगा, अगर एक्सेलरेशन माइनस है तो वेलोसिटी प्लस में होगी, तो हमारा रिटार्डेशन मोशन होगा। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपने इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब हर 1 सेकेंड बाद, यहाँ पे स्टूडेंट केवल वेलोसिटी को देखेंगे। वेलोसिटी पहले निगेटिव डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड थी, अब निगेटिव डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड है, फिर -6 मीटर सेकेंड, फिर -4, -2, देन 0, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो गई। तो स्टूडेंट अब आप देख पा रहे हैं कि जो पहले वेलोसिटी थी और बाद की वेलोसिटी, उसमें 2 मीटर पर सेकेंड का चेंज आया है। और इस वाले कॉन्सेप्ट में आपने देखा वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की, वो हर बार 2 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो जा रही है, मतलब कम हो जा रही है। तो स्टूडेंट आई होप कि अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में आया होगा कि जब हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, आप देखिए तो वेलोसिटी क्या है। देखिए स्टूडेंट आप देख पा रहे हैं एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन आप देख पा रहे हैं जो येलो एरो वो कांस्टेंट है, मीनिंग चेंज इन वेलोसिटी सेम है, बट यहाँ पे वेलोसिटी का डायरेक्शन देखिए हर बार वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। और अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट है एक्सेलरेशन के, मीनिंग के एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ले सकते हैं। अगर वेलोसिटी की वैल्यू माइनस ली है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस लेंगे, तो ये आपको रिटार्डेशन शो करेगा। और आप देख पा रहे हैं हर सेकंड बाद वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से आपकी डिक्रीज हो जा रही है। तो आप देख पा रहे हैं मोशन हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, तो यहाँ पहले -10 मीटर पर सेकेंड है वेलोसिटी, अब एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होने मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही होगी। अब यहाँ स्टूडेंट देख पा रहे हैं पहले 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, अब इस एरो की लेंथ कम हो गई स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं -2 मीटर पर सेकेंड और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, या एट लास्ट 0 हो गई। तो स्टूडेंट देख पा रहे हैं आप रिटार्डेशन के केस में क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट डाउन द हिल से अप द हिल जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। और आप देख पा रहे हैं हर टाइम इंटरवल, मतलब अब हर सेकंड में, या आप कह सकते हैं हर इक्वल टाइम इंटरवल बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से डिक्रीज हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो जब कम हो रही है तो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन होगा, और अगर इंक्रीज हो रही होती तो ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन होता। तो स्टूडेंट आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से मैनी नंबर ऑफ टाइम्स देखना है, और आपको जब कंफ्यूजन होगा तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको और क्लियर करेंगे। तो स्टूडेंट आज के लिए केवल आपका एक ही वीडियो है। थैंक यू स्टूडेंट्स।